नमस्कार। स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम से एक बार फिर से मैं नरेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर सप्ताह आपके लिए एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होता हूं। आज हम जा रहे हैं दौलताबाद किला अर्थात देवगिरी। ये किला औरंगाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये महाकोट दरवाज़ा है। महाकोट दरवाजे से ही हम सबको अंदर जाना होता है। 14वीं शताब्दी तक जहाँ पर ये किला स्थित है, इसका नाम हुआ करता स्थान का देवगिरी। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में अधिकतर लोगों का कहना है कि भीलम यादव ने करवाया, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसे अलग अलग फेसेस में बनाया गया। कुछ निर्माण इसका सतवाहन राजाओं ने कराया और यहाँ तक कि इसमें थोड़ा बहुत निर्माण राष्ट्रकूट्स ने भी किया होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। इस किले पर भीलम यादव और उसके बाद यादव वंश के 4 सशक्त राजाओं के अलावा खिलजी और फिर तुगलक और उसके बाद मुग़लों ने भी इस किले पर शासन किया, लेकिन सीधे इस किले को कोई नहीं जीत पाया। आइए चलते हैं अब अंदर, और हमारी टीम के साथ ये 3 बच्चे हैं, वो आपको अंदर लेकर के चलेंगे। दोस्तों, किले में लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य बातें किले के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह किला 200 मीटर ऊंचे पर्वत पर स्थित है। यह एक ऐसा किला है जिसे सीधे सीधे युद्ध में कोई नहीं जीत पाया। इसे जीता गया तो सिर्फ धोखाधड़ी से। इस रहस्यमय किले को लड़ाई से क्यों नहीं जीता गया, इसे जानने के लिए अंदर जाकर पूरी संरचना देखेंगे। Well, you can see some cannons at Daulatabad. Friends, the invention of cannons is variously attributed to the Chinese, the Arabs, and of course the Europeans. A typical cannon tapers from the base to the mouth. As you can see here, just see how beautifully it is built, and it slightly tapers from the base to the mouth, right? And as some of you must be knowing that the breech followed by cascabel, the rear end portion, and a small hole is provided at the rear. You can see the hole here. Okay, a small hole is provided, and just show this hole. If you can go deeper inside. Right. Cannons use gunpowder, saltpetre combined with charcoal and sulfur, of course. And in India, cannons were used very effectively for the first time by Babur in the first battle of Panipat, in 1526. Okay, that was between Babur and Ibrahim Lodhi. That was the month of April, as we all know, from 12th April to 19th April, against his adversary Ibrahim Lodhi. And friends, the tractor is passing, but I'm loud enough. I hope you can hear me. Since then, cannons have become an important component of all the battles. The earliest cannons were made of bronze. You can see the metal here, if you can recognize it.
they were initially, they were all made of bronze, right? And the Europeans introduced wrought iron and cast iron. Okay, I'll keep talking to you. Let's go inside. You can see some more cannons. Just show them. There are many, in fact. We will go for a visit and you can see they are tapered from the base to the mouth, and really these, see, for the first time when they were used in Panipat in 1526, the adversary was taken aback. He was, in fact, Ibrahim Lodi was not prepared for all this. The Indians saw the use of gunpowder for the first time in Panipat in 1526. And after that, you all know, is history. Thanks, friends. Let's go inside. Well, so entering inside seems to be a usual fort of the medieval India, but because of the height and because of the location, it was very difficult for enemy to attack. और दोस्तों, दीवारें देखिए, मजबूत इतनी कि 900 साल से ज्यों की त्यों खड़ी हैं। लकड़ी के दरवाजे आज भी बिल्कुल साबुत। देख सकते हैं आप स्वयं कितनी मजबूत हैं ये दीवारें। वास्तव में एक कारण ये भी था, इस किले को कोई नहीं जीत पाया। और इस दरवाजे में से निकलने के बाद आप देखिए, सामने आप एक मीनार देख रहे हैं। ये कुतुब मीनार के बाद सबसे ऊंची मीनार है। और अब आप देख सकते हैं एक मंदिर और मज़ारें, और फिर से आप सामने वो मीनार देख पा रहे हैं। किले की मजबूती देखते ही बनती है। उस मीनार की अगर हम बात करें सामने, तो ये 1445 में जब अल्बुद्दीन बहमनी के पास ये किला आया तो उसने ये मीनार बनवाई थी। वो सामने 230 सीढ़ियाँ हैं इसमें, और 210 फीट ऊंची है ये मीनार। इसके अलावा इसके बाईं तरफ अगर आप देखें तो एक भारत माता का मंदिर है। भारत माता की तस्वीर ऐसा लगता है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद लगाई गई है, शायद किसी ने निकाल दी होगी, ये फिर से आज़ादी के बाद लगाई गई। और आइए अब पहुंचते हैं मीनार पे, फिर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के तपस्वी ज्ञानेश्वर, आपने निश्चित रूप से नाम सुना होगा। ज्ञानेश्वर जी का लिखाक भी इसी काल में। दोस्तों, रामदेव राय यादव देवगिरी पर जब राज्य किया करते, ये बात 1264 की है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे हमला बोल दिया था। और इस हमले के
गड़बड़ी में किले के अनाज की जगह नमक भर दिया गया। जहां अनाज भरते थे ना, वहां भर दिया नमक। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पे आक्रमण किया ना, तो रामदेव के पुत्र शंकरदेव राय, अच्छा उन्होंने लोहा लिया, लेकिन युद्ध के अंत में थोड़े कमज़ोर पड़ गए और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से 600 मन सोना, 600 मन सोने के अलावा 7 मन मोती और 2 मन हीरे माणिक और लाखों रुपये लूट करके ले गया दोस्तों। और यहीं से यादव वंश को ग्रहण लग गया था, ये समझ लीजिए। 1300 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन ने ये अटैक किया था। किले की रक्षात्मक प्रणाली कितनी सुदृढ़ थी हम आपको दिखाते हैं। ये एक और खाई है, हमने एक खाई आपको पहले दिखा चुके हैं, दूसरी है। ओह, गहराई देखिए इसकी। दुश्मन किसी तरह से अगर यहाँ तक पहुँच भी जाए, इसको हटा लिया जाता था। ये पुल अब तो दोबारा बनाया गया है और ये परमानेंट बना दिया गया है, लेकिन दुश्मन को देखने के बाद इसको हटा दिया जाता था। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कोई दुश्मन इससे आगे फिर बढ़ पाएगा। तो इस खाई में मगरमच्छ भी हुआ करते, तो अंदाज़ा लगाइए। भूल भुलैया, तो भूल भुलैया में हम कहीं रास्ता भूल जाएं तो आप थोड़ा सा मदद करते रहना हमें। आइए। घुमावदार और अंधेरे रास्ते शत्रु को रोकने के लिए हुआ करते। यहाँ दुश्मन को 2 रास्ते दिखाई देते थे, आधी आधी सेना बट जाती थी और आगे जा कर के एक में ही मिल जाता है ये, तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ के आपस में ही लड़ने लगते और मार डालते थे एक दूसरे को। ये भूल भुलैया से निकलने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गणेश जी का मंदिर है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यादवों की मजबूत जो ज़्यादा ताकतवर राजा, सबसे पहले तो भिल्लम की बात कर सकते हैं, इसके बाद सिंघन, कृष्ण, महादेव राय, ये बहुत ही बलशाली राजा हुए। और ये है किले का सबसे ऊपरी भाग। यहाँ से ये 8 किलोमीटर की दूरी तक पूरी दीवारें पूरा दिखता है। तो अब आप याद कीजिए कि दोस्तों, यहाँ से चल कर के यहाँ होते हुए अंदर 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 भूल भुलैया से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हम लोग। लगभग 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है। और रास्ते में देखा आपने कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और यही कारण है कि ये किला कभी भी जीता नहीं गया। भले ही धोखे से सीधे युद्ध में नहीं जीता गया, कहने का मतलब ये है। धोखे से तो कई बार दूसरों के पास गया, यादवों के अलावा इस पर खिलजियों का आधिपत्य रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने तो राजधानी ही बनाई थी यहाँ, और बाद में मुग़लों का भी आधिपत्य रहा। लेकिन सीधे इस किले को जीतना बड़ा मुश्किल था, और ये सीधा कभी नहीं जीता गया युद्ध से। ये तो रही एक बात। और अब चलते चलते आपको इस किले का लोकेशन और दिखा देते हैं एक बार। औरंगाबाद आप देख पा रहे हैं, और औरंगाबाद से चल कर के
जब आप एलोरा की तरफ जाएंगे, देखिए ये रहा एलोरा, और एलोरा की तरफ जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है दौलताबाद का ये किला। देवगिरी पहले हुआ करता, बाद में हम सबको पता है नाम बदल दिया गया था, और इसके बाद ये खुलदाबाद। तो इस तरह से एलोरा की गुफाओं के रास्ते में ही ये किला पड़ता है। हाँ, एक बात और यहाँ स्पष्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं को बोला तो जाता है साथ साथ, लेकिन वैसे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। एलोरा यहाँ पर है दौलताबाद के इस किले के पास, जबकि अजंता आप देख सकते हैं है तो औरंगाबाद ज़िले में ही, लेकिन ये रही। तो इस तरह से ये लगभग यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये 100 किलोमीटर की है। जब भी आप यात्रा की योजना बनाएं तो कम से कम 2 दिन आपके लगेंगे, और टिकट ज़्यादा नहीं है। टिकट अपने भारतीयों के लिए तो केवल 25 रुपये का टिकट है, और विदेशियों के लिए तो खैर 500 रुपये है, ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नए स्थान पर, तब तक के लिए हम सब की तरफ से नमस्कार।